Hello students, today we are going to take the remaining part of our chapter Indigo. In the past two lectures we have studied or we have taken more than half of the chapter. Okay, so in the past lecture we were reading that in Motihari when Gandhiji decided to go to a village and see a maltreated peasant. So he was stopped or he was intercepted by official authorities and they asked him to leave Champaran or Motihari as soon as possible. But Gandhi disobeyed this order and as a result he was called or he was summoned to the court. Okay, in court he read a beautiful statement. In court he told the judge that he was actually involved in a conflict of duties. Conflict of duties means he was caught between two different duties and both were equally important. Okay, and at that particular time he could serve only one. Okay, so that is why he told the court because of the voice of his conscience he disobeyed the order to leave Champaran. ओके क्योंकि उसकी जो कौन से एक तरफ तो उसको लॉ को रिस्पेक्ट करना था, ऑर्डर मानना था और दूसरी तरफ उसको अपने कंट्रीमैन के लिए ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज ऑफर करनी थी। तो बिकॉज वो दोनों एक टाइम पे फॉलो नहीं कर सकता था तो उन्होंने कोर्ट को बताया कि मेरी कॉन्शियंस ने मुझे ये कहा कि आई शुड स्टे हियर एंड सर्व द कंट्रीमैन, इसलिए जो है मैंने उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। दैट इज व्हाई आई डिसओबेड द ऑर्डर। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Majroor Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. क्योंकि गांधी जी जब इसमें थे, डिफिकल्टी में थे विद द लीगल अथॉरिटीज, तो गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूर हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट फेमस लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। प्रोमिनेंट फेमस जो लॉयर्स थे वहां के बिहार के, वो लोग वहां पर आए थे गांधी जी की रिक्वेस्ट पर या गांधी जी के मैसेज से। They conferred with Gandhi, met with Gandhi, talked with Gandhi. What do they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked. Gandhi put a simple question before them कि what will you do if I am sentenced to prison, कि अगर मुझे जेल हो जाती है, अगर आज मुझे जेल में डाल दिया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? Why the senior lawyer replied? Means the reply of the senior lawyer was that they had come to advise and help. कि we have come here to advise you and to help you. Okay, we have nothing to do with other people, to the peasants or to the farmers. If you went to jail, there would be nobody to advise, and if you are sentenced to prison and if you are sent to jail, there would be nobody to advise, क्योंकि हम तो आपको advise करने के लिए आए हैं, and they would go home. If you are sentenced to prison, then we will return to our houses. हम अपने घर चले जाएंगे अगर आपको punishment होती है तो। What about the injustice to the sharecroppers? Gandhi demanded. Then Gandhi asked them, what about the injustice to the sharecroppers? उनके साथ जो injustice हो रहा है उसका क्या? उसको कौन देखेगा? उसके साथ कौन डील करेगा? The lawyers withdrew to consult. So the lawyer collectively went back and they wanted to consult, है ना? And उन्होंने गांधी जी को कहा कि भाई हम आपस में कंसल्ट करते हैं और हम आपको बताएंगे। Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultation. So means a conclusion, summary of their consultation, जो उनमें discussion हुआ, उसका जो है राजेंद्र प्रसाद बताते हैं। They thought amongst themselves. Those people thought that what did they think? That Gandhi was totally a stranger, yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, be not only residents of the adjoining neighboring districts, but only those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. What did they think? They think that Gandhi is totally stranger to this place. He belongs to Gujarat, Sevagram, and he comes here and he is ready to go to jail for these peasants. And we are the people of adjoining neighboring districts, and we have taken their cases to court as well. तो एक तरफ तो दूसरी इतनी दूर से आया हुआ आदमी इनके लिए जेल जाने के लिए तैयार है, ओके, टू सर्व दिस पीपल, और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने घर चले जाएं, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल ड्यूटी नहीं बनती है, और अगर हम घर जाते हैं तो दैट वुड बी ए शेमफुल एक्ट ऑन आवर पार्ट। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये सोचा कि भाई एक अजनबी स्ट्रेंजर आदमी, ही वाज नॉट ए स्ट्रेंजर बट
a person from a different country, from a different state is ready to go to jail for the sake of these peasants, और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। तो उन्होंने सोचा कि इफ वी गो होम दैट वुड बी अ sinful act on our part. They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. So they went back to Gandhi and told him that we are ready to follow you into jail. The battle of Champaran is won, he exclaimed. So on that particular time, Gandhi had exclaimed. Means before the result of this battle of Champaran, he had already declared that if you are with me and if you have realized your responsibility, then you can be sure that we have won the battle. हम ये लड़ाई जीत गए. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the orders in which each pair was to court arrest. और उन्होंने जो है एक पेपर लिया, उस पे सभी जो है सारे ग्रुप को एक एक पेयर में जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया और उनके लिए जो है वहां पर उस पे ऑर्डर्स लिख दिए कि आपको कैसे और कब कोर्ट अरेस्ट होना है. ओके, सो दैट वाज हिज प्लानिंग. Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. तो कुछ दिन बाद, काफी दिन बाद उनको मजिस्ट्रेट से एक ऑर्डर मिला, एक मैसेज मिला कि जो लिeutenant गवर्नर है उस प्रोविंस के स्टेट के, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि ये जो केस उनके अगेंस्ट है दिस शुड बी ड्रॉप्ड, बंद किया जाए. सिविल डिसोबीडियंस, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. सिविल disobedience. Okay, so civil disobedience means when we disobey someone. Okay, when we disobey someone but we in a civil manner. Okay, disobey someone but we do not opt for violent ways. Okay, means with folded hand, means हाथ जोड़ के we are disobeying you. So that kind of approach was new to Indian politics. कि आज तक क्या हुआ था, means जो भी protest हुए थे Britishers के against, they had been violent or such kind of mutiny और इस तरह के हुए थे. But Gandhi had introduced a new way of protest and that was civil disobedience. Civil means with respect, with due respect, we are disobeying you. Okay, so that is called civil disobedience. It means हम आपकी बात भी नहीं मानेंगे and we have respect for you. So that was a new way of politics. और इसकी पहली बार ही में ही क्या हुई थी, that had won, जीत हुई थी the first time in modern India and for the first time in modern India. Okay, civil disobedience had turned out to be victorious. Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Okay, now because the case was dropped against Gandhi ji, तो क्या हुआ कि सारे गांधी जी और सारे लॉयर्स मिलके जो है उन्होंने एक वास्ट लेवल की इंक्वायरी शुरू की into the grievances, miseries, pains of the farmers. Depositions, statements about 10,000 peasants were written down. About the statements of about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. और दूसरे evidences जैसे दूसरे sources से भी जो है notes gather किए गए. Documents were collected, government offices से documents के collect किए गए. The whole area throbbed means was shaking है ना, एक तरह से हिल उठा. With the activity of the investigators, एक तरफ तो जो investigator Gandhi and his companions were investigating on and the vehement protest of the landlords, and on the other side the landlords were vehement strong. They were strongly opposing this state. एक तरफ तो वो उस चीज को अपोज कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे, एक तरफ गांधी जी और उसके जो फ्रेंड्स हैं, कंपेनियन है, वो इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे. तो जो पूरा एरिया था दैट वाज फुल ऑफ एक्टिविटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम. In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. He was called to Sir Edward Gate, who happened to be the Lieutenant Governor at that time. Before he went, he met leading associates and again laid detailed plan for civil disobedience if he should recall. So before going there, he met his friends, leading associates जो famous जो लोग थे उनसे मिले और उन्होंने in advance ही जो है क्या कर दिया, detailed plannings लिख दी उनके लिए कि आपको कैसे कैसे court arrest होना है. Okay. Gandhi had fought protracted long interviews with
the lieutenant governor who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation। मीन्स गांधी जी के उनके साथ जो है 4 इंटरव्यूज हुए अलग अलग टाइम पे, डिफरेंट टाइम्स पे, और इस आखिर में वो इस बात से कन्विंस हुए और उन्होंने ये कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, सर एडवर्ड बेड ने, कि मैं आपके उस पे जो है ऑफिशियल कमीशन बना था, आप इंक्वायरीज ना कीजिए, आई एम गोइंग टू अपॉइंट कमीशन और वो इंक्वायरीज करेगा इन केस मैटर। ओके, द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और उस कमीशन में देखिए कौन कौन थे, लैंडलॉर्ड्स, गवर्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। वे सारे लोग ब्रिटिशर्स, लैंडलॉर्ड्स भी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी, और पीजेंट्स की तरफ से सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव और वो गांधी जी ही थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी जो है 7 months तक कंटिन्यू जो है चंपारण में रहे, and then again for several shorter visits, and after that time to time for short visits he went there। The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasants, unlettered illiterate मींस जो एक उनकी जो जर्नी, उनकी जो विजिट शुरू हुई थी किससे, अनलेटर्ड, एक मींस इलिटरेट पीजेंट्स के साथ एक कमिटमेंट के तौर पर, इन द एक्सपेक्टेशन, इस एक्सपेक्टेशन के साथ दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, कि वो कुछ ही दिन चलेगी, ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। इसने क्या कर लिया, गांधी जी की लाइफ का कंप्लीट 1 ईयर ऑक्यूपाई कर लिया। ओके, ये गांधी जी जो है पहले तो जो है कंटिन्यूअसली 7 months तक रहे और उसके बाद भी टाइम टू टाइम ही विजिटेड चंपारण, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर जो है गांधी जी का इस चंपारण एपिसोड में लगा। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters। और जब ये इंक्वायरी हुई ऑफिशियल कमीशन से, तो that collected a crushing mountain, means a lot of evidences against the planters, उनके अगेंस्ट बहुत सारे जो उनको एविडेंसेस मिले। And when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants। और जब उन्होंने ऐसे देखा कि भाई इलीगल वे में जो है पैसा छीना गया है या कलेक्ट किया गया है, तो they got agree to make the refund। Okay, but how much must we pay? They asked गांधी जी। लेकिन गांधी जी ने उनसे डिमांड किया कि भाई अब कितना पैसा आपको वापस पे करें। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। उनको क्या लगा, इलीगली गैरकानूनी तौर से एंड डिसीटफुली मींस धोखे से जो छीना था, वो सारा पैसा वापस मांगेगा। मींस ऑब्वियस है, जब उनसे पूछा जाए भाई कितना पैसा चाहिए, तो ऑफ कोर्स यू विल आस्क सारा पैसा दो भाई, तो उनको भी एक्सपेक्टेशन थे गांधी जी सारा पैसा मांगेंगे। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन उन्होंने कितना मांगा, ओनली 50%। There he seemed adamant, means agree। Okay, writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode as it closely। J.Z. Hodge जो एक ब्रिटिश मिशनरी थे ना, वर्क फॉर हिज रिलीजन, तो उन्होंने पूरा मैटर जो अपने पास से देखा था। ओके, तो थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव इट, ये सोचकर कि हालांकि गांधी जी मानेंगे नहीं, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड द एक्सटेंट ऑफ 25%। उन्होंने कितना ऑफर किया, 25%। उनको लगता था इंटरनली कि भाई मानेंगे तो नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो जब उन्होंने मांगा 50%, तो उन्होंने कहा भाई नहीं, हम तो 25 करेंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, थस ब्रेकिंग द डायलॉग। और सबके लिए सरप्राइज अमेजमेंट की बात ये थी कि गांधी जी 25% जो है रिफंड पे भी क्या हो गए, एग्री हो गए। और इस तरह से डेडलॉक, ये जो एक संकट, एक तो सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन, ऑफ पजल चली हुई थी, दैट गॉट एंडेड। ओके, स्ट्रगल जो चला हुआ था ये खत्म हुआ। This settlement was adopted unanimously by the commission and this statement was without any further conditions was adopted by the commission। गांधी एक्सप्लेन, और जब गांधी जी से क्वेश्चन किया गया बाद में जो है, और लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई आप 25% पे क्यों एग्री हुए, तो गांधी जी ने क्या बताया, दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट, कि अमाउंट जो है ना दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज दैट the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender parts of the money and with it part of their prestige। कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, उन्होंने पहली बार क्या किया है, पैसा सरेंडर किया, चाहे 25% किया हो, लेकिन इट हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने अपने पास से कुछ पैसा फार्मर्स को वापस किया। ओके, और इसके साथ साथ उनकी प्रेस्टीज, उनकी जो इज्जत है, एक तरह से जो प्राइड है, जो प्राउड है, वो भी क्या हुआ है, कम। Therefore, as far as the peasants were concerned, और जहां तक peasants की बात है, उनको क्या मिला, the planters had behaved lords above the law until or unless, means अब तक क्या हुआ था, so far the
प्लांटर्स लैंडलॉर्ड्स हैड बिहेव्ड लॉर्ड्स अबाउट द लॉ। वो कैसे बिहेव करते थे कि हम कानून से ऊपर है, कि हम बनाने वाले हैं तो वो हम पर लागू नहीं होता। नाउ द पीजेंट्स saw that he rights and he had rights and defenders। पहली बार इंडियन फार्मर ने ये देखा कि भाई मेरे भी राइट्स हैं एंड उसके डिफेंड करने वाले। he learns courage। उसने पहली बार करेज, हिम्मत, डेयरिंग सीखी, ठीक है, टू स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये सीखा। और यही गांधी जी का पर्पस था। उन्होंने शुरू में कहा था ना कि जो पहला जो स्टेप होगा दैट विल बी फ्रीडम फ्रॉम फियर। पैसा उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। उन्होंने ये चाहा कि भाई एक ऐसा इंडियन, आगे आएगा चैप्टर में, कि ऐसा इंडियन तैयार किया जाए जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और उन जो ब्रिटिशर्स के फॉर्म में जो एक तरह से जो उसके सामने जो चैलेंज है उसको फेस कर सके, उनके अगेंस्ट स्टैंड अप हो सके, ठीक है। तो दैट वाज हिज इंटेंशन। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। और बाद में जो इवेंट्स हुई उन्होंने गांधी जी के इस जो है एस्टिमेट को जो है सही भी ठहराया। Within a few years, British planters abandoned, given up, give up, abandon होता to give up, छोड़ देना, their estates, अपनी lands उन्होंने छोड़ दी, which reverted means given back, जो वापस कर दी गई to the peasants, indigo sharecropping disappeared, और इस तरह से indigo sharecropping खत्म हो गई। गांधी never contented himself with large political और economic solutions। अब देखिए गांधी जी ये नहीं है कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो सिर्फ उसी से रिलेटेड रहेंगे, ओके, पॉलिटिकल काम कर रहे हैं तो सिर्फ पॉलिटिकल ही रहेंगे, नहीं। गांधी जी कभी भी अपने आप को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन तक ही कन्फाइन नहीं रखते थे। He saw the cultural and social backwardness in the चंपारण villages and wanted to do something about it immediately। गांधी जी ने देखा कि जो चंपारण विलेजेस हैं वो सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट में भी काफी बैकवर्ड है, उसमें भी काफी पिछड़े हुए हैं वो लोग, and wanted to do something about it immediately। और वो क्या चाहते थे कि मैं जल्दी से जल्दी इसके लिए कुछ कर, ओके, चंपारण विलेजेस के लिए। He appealed for teachers। उन्होंने टीचर्स से अपील की भाई टू कम एंड ऑफर योर वॉलंटियर सर्विसेज। महादेव देसाई, नरहरि पारिख, टू यंग मैन फ्रॉम who had just joined गांधी जी as disciples, तो गांधी जी के अभी शिष्य बने थे, डिसिपल्स, फॉलोअर बने थे, and their wives volunteered for the work, और उनकी वाइफ्स जो है इस काम के लिए आए। Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land। और लोग भी जो है बॉम्बे से, पूना से, और गांधी जी के अपील के ऊपर वो लोग अलग अलग पार्ट से इंडिया के वहां पर आए। देवादास, गांधीज यंगेस्ट सन, देवादास जो गांधी जी का सबसे छोटा बेटा था, ओके, अराइव्ड फ्रॉम आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी, और मिसेस कस्तूरबा गांधी भी जो है वहां पर आई, गांधी जी उनकी वाइफ भी। Primary schools were opened in 6 villages। Kasturbai taught the ashram rules of personal cleanliness and community sanitation। जो 6 गांवों में जो है प्राइमरी स्कूल्स खोले गए, और कस्तूरबाई ने उनको पर्सनली क्लीननेस मींस पर्सनल क्लीननेस, कैसे आप अपने आप को क्लीन रख सकते हैं, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और कैसे आप अपनी कम्युनिटी को साफ सुथरा रख सकते हैं। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। हेल्थ कंडीशंस वर आल्सो मिजरेबल इन चंपारण विलेजेस। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। गांधी जी ने एक डॉक्टर को अरेंज किया जिन्होंने 6 महीने के लिए एग्री हुए कि भाई अपनी वॉलंटियर सर्विसेज वहां पर वो देंगे। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबॉडी हु शोड ए पॉटी टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, जो है टंग डिजीज के लिए कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबॉडी विद मलेरिया रिसीव्ड क्विनीन प्लस कैस्टर ऑयल, और किसी को मलेरिया होता तो उसको क्विनीन के साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता था। Anybody with skin eruptions received ointment plus castor oil, और किसी को स्किन डिजीज हो जाती थी तो उसको ऑइंटमेंट के साथ जो है कैस्टर ऑयल दिया जाता है। गांधी noticed the filthy state of women's clothes। He asked Kasturbai to talk to them about it। उन्होंने देखा कि जो ड्रेसिंग सेंस है ऑफ द वुमेन दैट वाज आल्सो वेरी पुअर, तो उन्होंने कस्तूरबाई अपनी वाइफ को कहा कि यू शुड टॉक टू दीस वुमेन अबाउट दिस, दे शुड इंप्रूव देयर ड्रेसिंग सेंस। One woman took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes." और उन्होंने क्या बताया कि मेरे घर में कोई भी जो है कबोर्ड या जो है बॉक्स नहीं है, कबाड़ नहीं है, जो है बॉक्स नहीं है क्लॉथ्स के लिए। The sari I am wearing is the only one I have. Okay, the sari that I am wearing is the only one that I have. During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram। ऐसा नहीं है गांधी जी जब चंपारण में तो आश्रम को बिल्कुल भूल गए थे, उन्होंने उसके ऊपर भी नजर रखी। He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts। और लगातार मेल से उसको मैनेजमेंट को लेकर, आश्रम मैनेजमेंट को लेकर जो है इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते थे, और फाइनेंशियल हेल्प भी वहां से मंगवाते रहते थे।
Once he wrote to the residents that it was the time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. Latrine के जो गड्ढे थे उनको भरने के लिए उनको इंस्ट्रक्ट किया, otherwise they would smell bad. तो इस तरह से साफ सफाई को लेकर या मैनेजमेंट को लेकर इंस्ट्रक्शन वो भेजते रहते थे। The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. इस पूरे एपिसोड को गांधी जी अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। What I did, he explained, was a very ordinary thing. And Gandhi said that what I did was a very ordinary thing. ना कोई मैंने बड़ा तीर नहीं माना, मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया। What I did, he explained, was a very ordinary thing. And what I have done is a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. That what I have done, what I have did is the only thing that I have made the British realize that you cannot order me in my own country. कि आप मेरे ही देश में मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाट गांधी डिड इन दिस एपिसोड कि भाई ये नहीं है कि यहाँ पर आप जो है लॉ से अबाव है या आप कानून से ऊपर है, आप जो कहेंगे वो माना जाएगा। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस। डेफियंस मींस टू अपोज, है ना, जब आप किसी का पुरजोर विरोध करते हैं या आप हर स्टेप पे उसको आपको अपोज करना ही करना है, दैट इज व्हाट। It grew out an attempt to alleviate, decrease the distress of large number of poor peasants. देखिए जाने का मतलब ये नहीं था कि मुझे ब्रिटिशर्स को विरोध करना है, क्योंकि इनिशियली जैसे बताया गया गांधी जी तो ठीक मानते थे। वो किस अटेम्प्ट के तौर पर शुरू हुआ कि भाई मुझे पुअर फार्मर्स की हेल्प करनी है, और इन दैट एफर्ट समटाइम्स he got to oppose the Britishers. That was second. मतलब ये नहीं कि oppose first thing, help second thing. Okay, first thing to help the poor farmers, and in that attempt or in that effort अगर उनको कहीं oppose करना पड़ा तो he did that. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. और उनकी जो politics थी वो एक एरिया की 1100 या 10 लोगों की नहीं थी, that was of millions. Okay. His was not a loyalty to abstractions. ऐसा नहीं था कि वो abstractions पैदा करना चाहते थे, abstractions के लिए loyal थे कि भाई मुझे तो इनके अगेंस्ट विरोध पैदा करना है, ब्रिटिशर्स का विरोध करना है। It was a loyalty to living human beings, बल्कि उनकी loyalty किनके लिए थी? अपने countrymen और अपने देश के human beings के लिए, उनको वो सर्व करना चाहते थे। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his feet and thus make India free. जो भी गांधी जी ने किया उनका एक अटेम्प्ट जरूर था कि उन्होंने एक नया इंडियन बनाने की कोशिश की जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और देश को आजाद कर सके। ओके, कि भाई ये नहीं है कि भाई शॉर्ट टर्म जो है इफेक्ट्स हों किसी सिचुएशन के या पॉलिटिक्स के, उनकी जो पॉलिटिक्स थी उसमें वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के लिए काम करते थे। ओके, तो उन्होंने यहाँ से जो है ना उनमें करेज की फीलिंग डाली, हिम्मत डाली कि भाई डेयर करना उनको सिखाया और उनको अगेंस्ट जो है ब्रिटिशर्स के खड़ा होना सिखाया, और यही उनकी स्पिरिट अल्टीमेटली जाकर इंडिया के इंडिपेंडेंस की वजह। Early in the Champaran action, Charles Frere Andrews, the English pacifist. Pacifist means who works for peace, ना जो peace को he opposes war, जो war को against है और peace को provoke करता है. Who had become a devoted follower of the Mahatma, जो कि महात्मा गांधी के devoted follower बन गए थे. Came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Island. वो Fiji Island जा रहे थे तो उससे पहले तो गांधी जी के फॉलोअर बन गया था वो भी, तो गांधी जी को जैसे फेयरवेल कहने के लिए आया हूँ तो जो है कि भाई मैं वहां पर जा रहा हूँ। Gandhi's loyal friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. और गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे उनको क्या लगा कि एक अच्छा आइडिया होगा कि अगर चार्ल्स फ्रेयर यहीं पर रुके और हमारी हेल्प करें। ओके, क्योंकि because he was an Englishman. Andrews was willing if Gandhi agreed. Andrews ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर गांधी जी एग्री हो जाते हैं तो, but Gandhi was vehemently opposed. Gandhi was strongly against that. No, it should not be there. He said, you think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side? कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस अनइक्वल बैटल में अगर हम एक इंग्लिशमैन को अपनी साइड कर लेते तो फेयर हो जाएगा, सब कुछ बराबर हो जाएगा? That is not what we want. This shows the weakness of your heart. ये दिखाता है कि आप इंटरनली कितने कमजोर हैं। The cause is just. We are fighting. We are struggling for a justified जो है, हम एक सही काम के लिए लड़ रहे हैं, and you must rely upon yourselves to win the battle. और जब आप सही काम के लिए लड़ रहे हैं तो आप उस बैटल को जीतने के लिए अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। You should not seek a prop means help in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इसकी हेल्प ले लें कि एक इंग्लिशमैन है। ओके, तो this is wrong thinking. To win the battle,
to overcome the situation, to overcome the difficulties, one must rely, one must depend upon himself. Okay, हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए. He had read our minds correctly. राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स. राजेंद्र प्रसाद कहते हैं हमारी भी यही थिंकिंग थी, सिर्फ हम उसको एक इंग्लिशमैन के तौर पर अपने लिए हेल्प मांगना चाहते थे और उन्होंने अपनी थिंकिंग को पढ़ लिया. एंड वी हैड नो रिप्लाई. हमारे पास गांधी जी के इन आर्गुमेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं था. गांधी इज दिस वे टोट ए लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस का जो हमें लेसन पढ़ाया, सिखाया कि कैसे हम अपने आप पर भरोसा कर सकते, अपने आप पर डिपेंड कर सकते, निर्भर हो सकते. Self reliance, self dependence, Indian independence and help to share progress were all bound together. ये तीनों एलिमेंट्स की फीलिंग ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, ये सब चीजें तीनों आपस में जुड़ी हुई थी. क्योंकि जो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प थी वहीं से उन्होंने जो है उनको सेल्फ डिपेंडेंस का लेसन पढ़ाया और उसी सेल्फ डिपेंडेंस की वजह से बाद में जाकर जो है इंडिया को फ्रीडम मिली, इंडिपेंडेंस मिली. क्योंकि वहीं से जो एक नया इंडियन जो है गांधी जी ने मोल्ड करना शुरू किया, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, टाइम आने पर इंग्लिश पावर को चैलेंज कर सके और अपने राइट्स के लिए लड़ सके. ओके, यही चीज आकर जो है डिसाइडिंग फैक्टर जो है प्रूव हुई इंडिया की इंडिपेंडेंस. ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव इन दिस चैप्टर. होप यू हैव अंडरस्टूड इट. थैंक यू वेरी मच.